Hello dear students, today we'll see another problem on section of solid and development of lateral surfaces. The problem is a solid cylinder of 50 mm diameter of base and 60 mm height is resting on its base on ground. It is cut by a section plane perpendicular to VP which cuts the axis at a point 40 mm from the base and makes an angle of 45 degrees with HP. Draw the projections, sectional top view, true shape and the true shape of the section. Show the DLS of the solid, that is development of lateral surfaces. So here in the problem, we have been given with a solid. Identify the solid. It is a solid cylinder of given dimension. It is resting on the base of ground, that is it is on HP. So therefore we'll start with the top view. The true shape of the base is visible in the top, right? और सेक्शन प्लेन जो कट कर रहा है वो कहाँ पे कट कर रहा है 40 mm फ्रॉम द बेस और कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्रीज. सो टू बिगिन विथ फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ लाइन एक्स वाई. सो द डायमीटर इज 50 mm. यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है, मैं यहाँ पे स्केल हाफ कर लेता हूँ 1:2. तो 50 mm बोला है तो मैं यहाँ पे 50 का आधा ले लेता हूँ, राइट. वैसे भी कर सकते हैं, आप स्केल को हाफ कर सकते हो, राइट. 50 mm इज द डायमीटर, सो रेडियस कितना रहेगा आपका 2.5 रहेगा, राइट. सो लीव अ कंफर्टेबल डिस्टेंस सो दैट यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आएगा और आपका टॉप व्यू भी आएगा और सेक्शनल ट्रू शेप भी आएगा, राइट. सो वी ड्रॉ and then we divide the circle into 12 equal parts. So with the help of compass equal to the radius, distance, divide the circle into 12 parts. So this is how we have divided it into 12 equal parts. We can label them. We'll label the circle as 1, 2, 3, 4. So let this be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So these are the 12 points. So with the help of ruler scale, we'll project it in the front. सो प्रॉब्लम में जो दिया है अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, हाइट मार्क कर लिया. अभी हमें कहा गया है कि बेस से 40 mm डिस्टेंस पे क्या है, सेक्शन प्लेन कट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. सो यहाँ से 40 डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम और प्रोटेक्टर से एक 45 डिग्री पे पॉइंट मार्क करेंगे, राइट. सो वी गेट द ओरिएंटेशन ऑफ द सेक्शन प्लेन, राइट. सो दिस विल बी द पोजिशन of the section plane. So it will be dot dash chain line thick at the end, right. So ये हो गया हमारा position of the section plane. ये डायमेंशन आप दे सकते हो यहाँ पे, ये हमें कितना दिया गया है प्रॉब्लम में. It has been mentioned as 40 degrees 40 mm from the base and let this angle be angle 45, right. So the lower portion is the retained portion whereas the upper half will be removed, right. So now let us label it. So to label it we need to project rest other points with the help of roller scale in the front, right. So with the help of roller scale let us project rest other points.
Now it is intersecting the points on the cylinder. जहाँ जहाँ intersect हो रहा है वहाँ पे हम नाम देंगे, right? So this is point A. These are generators. So this is point B, C, D, E. This will have F. F के पीछे आएगा G, H, I, J एंड K. ये फ्रंट व्यू में है तो हम इसको डैश लेबल देंगे, C डैश, D डैश, H. Right. So these are the section point. And now we need to get the section in the top. So यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे. ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है F और G, यहाँ से हम पॉइंट क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे. Right. So this is the projection that we obtain, and rest can be made hatch with hatching line. Now we'll project it to get the ट्रू शेप, राइट. सो यहाँ से हम एक 90 डिग्री पे लाइन लगाते हैं और विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल हम हर एक सेक्शन पॉइंट, वॉट एवर वी हैव ऑब्टेन द सेक्शन पॉइंट ऑन दिस सॉलिड, राइट, जहाँ जहाँ हमें सेक्शन पॉइंट मिल रहा है हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल वी आर ट्रांसफरिंग द पॉइंट्स एंड गेटिंग द प्रोजेक्शंस. ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से देख रहा है टू गेट द ट्रू शेप. सो व्हाट वी डू इज वी प्रोजेक्ट द लाइन्स ओवर हियर, राइट. सो देखते हैं ट्रू शेप कैसा दिखता है. ये प्रोजेक्टर्स आ गए हैं हमारे पास. नाउ वी नीड टू ड्रॉ x1 y1 लाइन. x1 y1 लाइन विल बी पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन, राइट. इट विल बी पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन. सो इसको नाम दे देता हूँ मैं x1 y1. दिस इज माई x एंड दिस इज माई y. दिस इज x1 लाइन. अभी x1 y1 है, मतलब डिस्टेंस कहाँ से मिलना, मेजर करना है xy से. xy x1 y1. अगर x2 y2 रहता तो x1 y1 से मेजर करते, राइट. एक पीछे जाना है. सो x1 y1 है तो xy से डिस्टेंस मेजर करेंगे. तो यहाँ पे हमें सेक्शन पॉइंट्स मिल गए फ्रंट में. सेक्शन पॉइंट्स हमें दिखाने हैं टॉप में. तो टॉप में हमें सेक्शन पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिल गया A, दिस इज B, C, दिस इज D, E, राइट. ये यहाँ पे आएगा F. यहाँ तक सेक्शन है हमारा F. यहाँ पे F के पीछे आएगा G, H, I, J and this will be K, right. So we have obtained this section point. Now A will come on this locus line and this locus line. तो उसका डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे और इस लोकस लाइन पे कट करेंगे. सिमिलरली B का डिस्टेंस, B का यहाँ से मेजर करेंगे एक्स वाई से, और इसका लोकस क्या है, दिस इज द लोकस लाइन ऑफ दिस. तो यहाँ पे B मार्क करेंगे. एंड दिस इज हाउ वी टेक द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड वी मेजर इट फ्रॉम एक्स वाई, और उसको हम x1 y1 पे रखेंगे और पॉइंट्स प्राप्त करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, हमें ट्रू शेप मिलेगा. आइए देखते हमें कैसा मिलता है वो ट्रू शेप, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस लेंगे कंपास में A का. A इज द सेक्शन पॉइंट इन द टॉप, राइट. ये डिस्टेंस ले लिया, हम रखेंगे इसको लोकस ऑफ A पे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे. तो हमको क्या मिलेगा, पॉइंट. वी गेट पॉइंट A1. Similarly, we take the distance of B in the compass. ठीक है, ये डिस्टेंस ले लिया आपने B का कंपास में, दिखाई दे रहा है सबको, राइट. इसका लोकस कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है लोकस यहाँ पे. तो यहाँ पे रखेंगे और हमें मिलेगा पॉइंट B1, राइट. सो दिस इज पॉइंट B1. नेक्स्ट इज C. C का डिस्टेंस मेजर करेंगे हम यहाँ पे, इसका लोकस यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट C मिलेगा. इस लाइन को आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज पॉइंट D. मेजर द डिस्टेंस D का
ये जनरेटर यहाँ पे कट हो रहा है और इसका प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमें मिलेगा D1. सो दिस इज C1, D1, D के बाद आता है हमारा E और 5 एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। ये लोकस यहाँ पे जा रहा है इधर से, और इधर से कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, तो X1 Y1 पे रखेंगे और कट करेंगे। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंसेस सही लेते हैं, लेकिन जब मार्क करने की बारी आती है तो X1 Y1 पे ना रखते हुए सेक्शन प्लेन पे रख के कट करते हैं, तो उस केस में आपको गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। सो ये कॉमन मिस्टेक है, ये अवॉइड करनी है हमें, राइट। सो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया E1। E1 के बाद आता है हमारा, E के बाद आता है F का हमें यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा। यहाँ पे सीक्वेंस मिलने के बाद ये जनरेटर यहाँ से और ये यहाँ पे कट होगा, राइट। सो दिस इज F1 पॉइंट। नेक्स्ट इज वी हैव G। सो G का डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ से, ये ले लिया डिस्टेंस, G के लोकस पे रखेंगे और मार्क करेंगे। G के बाद आएगा हमारा G1, G के बाद आता है H, ये H को मार्क कर लिया। H, नेक्स्ट इज I का लोकस यहाँ पे G और K, राइट। सो लेबलिंग हमको हेल्प करता है कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। प्रॉपर लेबलिंग अगर है तो पॉइंट्स को हाथों हाथ लेबलिंग देना है। EFG HI1 J1 एंड K1। तो ये हमें एक शेप दे रहा है। इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड और फ्रेंच कर्व, और उसे क्या करेंगे हम, हैचिंग। सो दिस इज द ट्रू शेप, sectional front view and sectional top view. So this is the true shape, this is the sectional top view, front view. It is in the front, it will be observed like this, and sectional top view. So true shape के लिए observer is looking from this direction, right। ये सेक्शन हमने क्या किया, रिमूव किया, तो ये मीडियम डार्क होना चाहिए, और ये जो रिटेन सेक्शन है इसको डार्कर बनाना है। रिटेन किया है तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसा एरो से इसका, और यहाँ पे XX या फिर YY लिख सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो सेक्शन प्लेन है, ये सेक्शन प्लेन की ये बाजू, ये साइड क्या है, रिटेन्ड है। ये जो सॉलिड दिख रहा है आपको, ये सॉलिड क्या किया हमने, रिटेन किया, और इसको क्या किया हमने, रिमूव किया। तो ये जो रिटेन्ड सॉलिड है, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको डार्कर शेड से बनाते हैं। ये ऊपर वाला पूरा फिगर मीडियम डार्क का बनाना है, और जो पोर्शन रिटेन करना है उसको हम क्या करते हैं, डार्कर शेड का बनाते हैं, right। So this is how you get this. Now they have also asked to draw the DLS of the solid, that is development of lateral surfaces। अब इस सिलेंडर का डेवलपमेंट हमें करना है, तो सिलेंडर का डेवलपमेंट आता है रेक्टेंगल से, right। You get a rectangle into this, so with the help of roller scale we try and draw a rectangle of given dimension। सो जो रेक्टेंगल की लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, पाई डी, और हाइट क्या रहेगी, 60 mm। सो 60 mm हमारे पास ऑलरेडी हाइट है, सो हाइट के हिसाब से हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, सो यू कैन मार्क 60 और हियर। पाई डी कितना आता है हमारा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पाई डी इज इक्वल टू
3.14 into diameter is 50. That comes around 157 mm, right? So 157 mm is the length. So we take 157 in the compass, in the scale, and measure and cut it accordingly. राइट, ये एक तरीका है 157 मार्क करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में। वो आपको पता है कैसे करना है। एक लाइन बनाएंगे अक्यूट एंगल पे, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे और लास्ट पॉइंट को कनेक्ट करके विद हेल्प ऑफ रोलर स्केल हम डिविजन्स ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। वो एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ऐसा है जो आपका समय बचाएगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन नॉर्मली to get an accurate figure you should avoid this, but this is a circle, right? So this small division on a circle is very small, so we can assume that as a straight line. So ये जो division है ये हम कंपास में लेते हैं और इसको कितनी बार रिपीट करते हैं, 12 बार, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बार, right? So we can label the points such as, let this be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, right? अभी ये 12 डिविजन्स मिल गए, तरीके बता दिया है। टोटल लेंथ पाई डी है 157, 157 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, वो एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि ये जो डिस्टेंस है एक डिवीजन है, काफ़ी 12 पार्ट में डिवाइड करने का, दिस इज द बेनिफिट, राइट। 12 पार्ट बोले तो ये बहुत छोटा हो गया। लेट अस कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन है तो दिस इज स्मॉल डिस्टेंस, पिक अप दिस डिस्टेंस एंड रिपीट इट 12 टाइम्स। दिस इज एन अल्टरनेटिव, राइट। सो इट विल सेव योर टाइम, बट देन समवेयर 1-2 mm का एक्यूरेसी में आपको दिक्कत जा सकती है। दैट इज माई कंसर्न, राइट। सो here we draw a line of height 60 mm and then with the help of roller scale we connect them, right? So हमने इसको 12 पार्ट में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 12 डिविजन्स है सर्कल के, और ये 12 डिविजन्स बोले तो 12 जनरेटर्स हो गए। वैसे तो देखा जाए तो सिलेंडर को और कोन को इनफाइनाइट जनरेटर्स होते हैं, लेकिन टू बी finite somewhere we have 12 generators with us. So with the help of roller scale what we do is we transfer the points with the help of parallel lines. So ये लोअर फेस है और ये के ऊपर वाला अपर फेस है, राइट। सिलेंडर का डीएलएस हमेशा रेक्टेंगल रहता है, लेंथ उसका पाई डी रहता है, दैट इज द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल, और हाइट जो हमारे सॉलिड की हाइट है 60, राइट। सो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस लेंथ एज पाई डी, right? This is pi d which is equal to 157 mn। हर जगह डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस लेबल द अपर साइड ऑल्सो, 1 2 3 4 5। सो वी आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन DLS। सो ए कहाँ पे कट हो रहा है, राइट, यहाँ पे 1 1 है। सो ए का हमें मिलेगा पॉइंट यहाँ पे। सो ए को ट्रांसफ़र करते हैं हम इस साइड, राइट। सो वी ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर ओवर हियर, राइट। बी कहाँ पे कट हो रहा है मेरा, 2 पे। सो बी का इंटरसेक्शन सेक्शन प्लेन का और सॉलिड का यहाँ पे हो रहा है, राइट। बी और के कहाँ पे आ रहा है, 12 पे। सो अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ
तो मुझे 12 वाला पॉइंट भी मिलेगा। राइट। सो हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 पे ख़त्म किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 पे ख़त्म किया। 12 के बाद जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे भी आपको ख़त्म होना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और इसका के वाला पॉइंट मिलेगा। थोड़ा सिमेट्रिसिटी है, सिलेंडर है तो। राइट। फिर सी कहाँ पे आ रहा है? 3 3 और 11 11 में सी और जे आपको मिलेगा। राइट। सो आप यहाँ पे यू कैन गिव द लेबल्स। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी योर कैपिटल A, दिस कुड बी योर B, B और K आपको यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट है C, C कहाँ मिलेगा आपको? 3 3 के बीच में, ये मिल गया आपको C। सो दिस इज पॉइंट C। और सेम डिस्टेंस रहेगा J का। J कहाँ पे मिल रहा है आपको? 11 11 पे। राइट। सो J हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? वही लाइन, वही हाइट पे, 11 11 पे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है J, कैपिटल J से हम इसको नोट करते हैं। राइट। नेक्स्ट इज D। विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल D को भी ट्रांसफ़र करते हैं। D आ रहा है 4 4 में और उसके पीछे I आ रहा है 10 10 में। ये 4 4 पे यहाँ पे आ रहा है और 10 10 पे आएगा I। राइट। नेक्स्ट इज, हर वक्त आपने रोलर स्केल का पैरेललिटी मेंटेन करना है, पैरेलल रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 5 5 पे आ रहा है पॉइंट और 9 9 पे H आ रहा है। यहाँ पे H आ रहा है। राइट। A B C D E, यहाँ पे आपका H आएगा और यहाँ पे आपका I आएगा। राइट। अब यहाँ पे F और G ये कहाँ पे है? इस प्लेन पे है। राइट। मतलब टॉप से देखेंगे हम तो हमको ये जो हैचिंग रीजन है ये कैसा है? ये स्लोप है, ये स्लोप है और ये स्ट्रेट प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली हमें जो हैचिंग है और जो रिटेन पोर्शन है, रिटेन पोर्शन का ये जो हिस्सा है ये हमें क्या करना है? हमें इसको डार्क करना है। हमारे और एक कंडीशन ये है कि जो भी चीज़ हैचिंग में रहेगी उसको तो डार्क करना ही करना है और जो भी चीज़ रिटेंड है तो उसको भी डार्क करना है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा पूरा ही सर्कल क्या रहेगा? डार्क बनेगा। राइट। सो ऊपर से जब आप देखते तो ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ये एरिया है वो, उसको दैट इज़ अनकट पोर्शन, इसलिए उसको हैचिंग नहीं। और ये जो स्लोप दिख रहा है ये स्लोप बदले तो ये हैचिंग पोर्शन। राइट। तो यहाँ पे आपको 6 और 5 के बीच में F मिल रहा है तो हम ये डिस्टेंस उठा के यहाँ पे ले सकते हैं। राइट। सो 5 से F का डिस्टेंस उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं और सेम डिस्टेंस आपका 9 से लेके 8 के तरफ है। सो 9 के तरफ से 8 के तरफ है। राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स। सो E के बाद हमें यहाँ पे F मिलेगा और यहाँ पे G मिलेगा। सिलेंडर है तो यहाँ पे कर्व आएंगे, फ्री हैंड आएंगे, जैसे हम कर्व इंजीनियरिंग कर्व्स में बनाते हैं। पिरामिड और प्रिज्म रहता तो स्ट्रेट लाइन आते। राइट। सो वापस से K आ गया और A जो है 1 1 पे A है तो हम A को रिपीट करेंगे। राइट। So we try and connect the points. Let the curve be continuous.
एक स्ट्रोक में जितना सटीकता से आता है उतना बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दिस इज द लोअर पोर्शन, है ना, दिस इज द लोअर पोर्शन, रिटेन पोर्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डार्क बनाएंगे। डीएलएस के जनरेटर्स है, जनरेटर्स को आपने डार्क नहीं बनाया तो भी चलेगा, मीडियम डार्क रखिए जनरेटर्स को, दिखने में अच्छा दिखेगा, राइट। सो ये सिलेंडर है जिसका डायमीटर 50 है, डायमेंशन मेंशन करेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो वी कैन मेंशन द डायमेंशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बेस सर्कल, right. So you mention the dimension. It is kept on the ground on its base in such a way that a section plane is cutting it from a distance of 40 from the base at an angle of 45 degrees. So you get the sectional front view, true shape of the section, and the sectional top view. This is the development of the cylinder. So you can write down here development of cylinder. So it is a DLS of cylinder. So this is how the complete figure looks like. So I hope you have got the problem, you have understood the concept. Thank you dear students, be in touch for more videos like this. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ड्राइंग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।